Let's start with question number 14. As on 31st March 2015, the ratio of capital and reserve is 4:1 in the business of Bhavna. The balance of other accounts on that date are as under prepare final accounts. Now before we start preparing final accounts, we have to make a trial balance. After making trial balance, we will find out some balancing figure on the credit side, as they have not given capital and reserve. Once we get that balancing figure, we will divide them in the ratio of 4:1 so that capital and reserve will be segregated. So before doing all those things, let's prepare trial balance. Here we have particulars, LF, debit rupees and credit rupees. Let's start. Opening stock amount is 30,000. Opening stock will come on debit side. Purchases 1 lakh rupees. Sales 2,50,000 rupees. Then we have debtors 1 lakh rupees. Creditors, it is 20,000 on credit side. Machinery is 2 lakhs. 10% loan taken from Pratibha. Date is 1/10/2014. This will be a hidden adjustment. Will take care. 50,000. Insurance premium, it is 9,000 on the debit side. Advertisement expense, it is 6,000 on the debit side. Furniture 8,000. Bad debt reserve, it will come on credit side. It is rupees 6,000. Rent paid rupees 1,200 per month. 12,000. Next one is carriage inward. Carriage inward, it is 4,000. Cash balance rupees 30,000. Office expense, it is rupees 20,000. Rent received, it is 3,000. Received, so it must be on the credit side. Income, patents 20,000, should be kept on debit side. Discount received, credit side 2,000 rupees. And depreciation on furniture 2,000. Yes, as discussed earlier, इसका जो बैलेंस है या इसका जो टोटल है वो टैली होने वाला नहीं है. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी. अब इसका टोटल करेंगे डेबिट साइड का. इट्स 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 lakhs प्लस 9,000 प्लस 6,000 plus 8,000 plus 12,000 plus 4,000 plus 30,000 plus 20,000 and plus 20,000 and plus 2,000. We'll be keeping 5,41,000 total on the debit side. The same total will be kept on the credit side. And let's try to find out balancing figure. 5,41,000 में से हम लोग डिडक्ट करेंगे 2,50,000, 20,000, 50,000, 6,000, 3,000 and 2,000. So it comes to 2,10,000. So remember, ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल, जिसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कैपिटल एंड रिजर्व में. Now see, we are making a small working note over here. 2,10,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4:1 में. That will be capital and reserve.
2,10,000 का 4/5 comes to 1,68,000 and 2,10,000 का 1/5 and that comes to 42,000. So friends, against capital I would like to write down 1,68,000 on credit side and against reserve we'll be keeping 42,000 on the credit side, and that's how our totals will get tallied. After preparation of trial balance, we can again start with the adjustments. Once all the adjustments are over, we will be doing the entries from trial balance. Let's say first adjustment. Closing stock is of rupees 80,000, out of which market value of 10% goods is 20% less, and goods of rupees 10,000 needs to be repaired for rupees 1,000. Let's say क्लोजिंग स्टॉक का जब कभी भी एडजस्टमेंट आता है, बहुत बार हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज लो. टोटल क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीस 80,000. इसमें से 10% गुड्स, 10% यानी कितने होते हैं, 8,000 होते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है. फ्रेंड्स इसका 20% लेस, तो 8,000 का 20% यानी कितना होता है, 1,600 रुपीस होता है, उतना लेस है. तो कहने से मार्केट वैल्यू मस्ट बी 6,400. अब इन दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर क्या होगा, 6,400 होगा. और बोला है 10,000 रुपए के गुड्स को 1,000 रुपए का रिपेयरिंग चाहिए. फ्रेंड्स 10,000 के गुड्स में अगर 1,000 का रिपेयरिंग करवाना है तो इसकी एज ऑफ नाउ मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 9,000 होगी. व्हिचएवर इज लोअर, तो हम लोग फिर से यहाँ पे 9,000 लेंगे. नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर रिमेनिंग आइटम्स दे हैव नॉट गिवन, सो 62,000 रुपीस का रिमेनिंग गुड्स है जिसकी मार्केट वैल्यू इज अननोन. अननोन मतलब सेम होगी ऐसा अज्यूम कर ले, and फिर यहाँ पे भी 62 ही आएगा. So please check 77,400 is the value of closing stock, which should be given effect in our routine way. 77,400 यहाँ पे भी क्या आएगा, it is 77,400. Tell me next. Goods of rupees 5,000 are distributed as free sample which is not recorded. देखो हमने अगर इसको फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो आपको पता है गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स विल बी रिकॉर्डेड एज अ डिडक्शन और वी कैन से रिडक्शन फ्रॉम द परचेज. परचेज में से हम लोग डिडक्ट करके रखते हैं. लेट अस सी परचेज में से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल. कितने रुपए के गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, 5,000 रुपीस के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए सैंपल से, जो ऐड हो जाएंगे अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के अंदर. ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. यू कैन चेक ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज 6,000 रुपीस, जिसमें हम लोग ऐड करेंगे गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 5,000 रुपीस. सो टोटल कितना हो जाएगा हमारे लिए, 11,000. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? गुड्स ऑफ रुपीस 6,000 withdrawn by Bhavna for her personal use. Owner है which is recorded in the sales book. Friends remember, अगर ये गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा. कैसे रिवर्स करेंगे? I would like to write down sales over here. Sales is 2,50,000. उसमें से goods withdrawn for personal use. Now please friends check personal use के लिए कितना गया है, 6,000 रुपीस. अब एक बात श्योर है, आप बोलोगे सर अगर सेल्स में से डिडक्ट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर्स में से डिडक्ट करना पड़ेगा. प्लीज फाइंड आउट डेटर्स आर 1 लाख रुपीस, उसमें से पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स गए दे आर 6,000. नेक्स्ट इज ये हमने क्या किया पता है आप लोगों को, सेल्स में से डिडक्ट किया यानी कि अंडू व्हाट इज रॉन्ग हो गया, जो गलती थी उसको मैंने रिवर्स कर दिया, लेकिन जो सही है उसको पास करना बाकी. मतलब ये हुआ कि ये 6,000 रुपीस के गुड्स दे वर एडिशनल विड्रॉल ऑफ द ओनर. सो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 6,000 रुपीस एंड फ्रेंड्स गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स वो भी यहाँ पे आएंगे 6,000. आपको शायद अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि सर इसमें तो 4 इफेक्ट हो गए. भाई 4 इफेक्ट ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करने का सिस्टम क्या होता है, जो भी कुछ गलत हुआ है उसको रिवर्स करो, मतलब कि उसकी इफेक्ट नलीफाई करो एंड उसके बाद जो करेक्ट करना था उसको पास करो. उसी एडजस्टमेंट में उन्होंने और एक चीज भी दी है, परचेज इनवॉइस ऑफ 4,000 रुपीस इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. चलो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं. परचेज के अंदर प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000 रुपीस एंड यहाँ पे जब भी क्रेडिटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स देख लो कितने के 20,000 के हैं,
उसमें हम लोग प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 4000 रुपीस, दैट कम्स टू 24000. चलिए नेक्स्ट. Insurance premium of rupees 3000 paid for the year ending as on 30th June 2015 is included in insurance premium. Remember, जब भी वो लोग 30th June 2015 कहते हैं, you have to check your year ending date once again. If we check our year ending date, it is 31st March 2015. इसका मतलब ये हुआ इंश्योरेंस 3 मंथ्स का प्रीपेड हो चुका है, आगे एडवांस में पे हो चुका है. करते हैं सारे कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट के अंदर. यहाँ पे ध्यान सबका. इंश्योरेंस प्रीमियम देखो 12 मंथ्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 3000. ओके, आई एग्री. ट्रायल बैलेंस में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम तो चाहे ज्यादा भी दिया हो सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ 3000 के इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ही है. सो 12 महीनों के लिए 3000, तो 3 मंथ्स का कितना. अब फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी ये 3 मंथ्स कहां से आए, तो मुझे देखो 31st मार्च 2015 इज द ईयर एंडिंग डेट एंड 30th जून 2015 इज द डेट फॉर इंश्योरेंस. कैन आई से 3 मंथ्स. So 12 months का 3000, तो 3 months का कितना, that comes to 750 rupees, which is prepaid. Now important is हम लोग P&L अकाउंट के अंदर जो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे वो तो टोटल लिखेंगे. Please search इंश्योरेंस प्रीमियम. इन टोटल they have given 9000 rupees. Can you find out? माइनस करेंगे प्रीपेड जो हमने कैलकुलेट किया 750 rupees. And those 750 rupees prepaid insurance I will keep over here 750. Out of the total debtor, a debtor of rupees 10,000 is declared insolvent and his receiver declared first and final dividend of 80 paisa per rupee and 5% BDRB provide करना है. This one is the best adjustment till now, and we can say यहाँ पे अगर बेडेड रिजर्व का एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहला काम तो यू नो वेरी वेल, आई मेक दिस फॉर्मेट बेडेड रिजर्व एंड बेडेड रिजर्व, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस. फ्रेंड्स प्लीज चेक. आई विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस एडजस्टमेंट ओवर हियर. इट नीड्स सम स्पेस. प्लीज वेरीफाई. मुझे बताइए एज ऑफ नाउ हमारे पास डेटर्स कितने हैं. 94000 के डेटर्स हैं. एज ऑफ नाउ हमारे पास डेटर्स हैं 94000. सबका ध्यान यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इसमें से 10000 के जो डेटर्स हैं, 10000 के डेटर्स वो किसी स्पेसिफिक डेटर की बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्पेसिफिक डेटर. और बाकी के 84000 के जनरल डेटर्स होंगे, अदर डेटर्स होंगे. ठीक है. अब ये जो 10000 के स्पेसिफिक डेटर्स है, इसमें क्या हुआ है, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि हम लोग 80% अमाउंट पे करेंगे. देखो वैसे तो वो लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए. इंसॉल्वेंट का मतलब आप सब जानते ही होंगे कि उनकी असेट्स कैपेबल नहीं है उनकी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं. इंसॉल्वेंट डेटर का मतलब क्या हुआ, उनके असेट्स कैपेबल नहीं है उनकी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. यस, आई एम रिपीटिंग, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लोग 80% पेमेंट कर सकेंगे, 100% नहीं कर सकेंगे. दैट इज फाइन. सो 8000 रुपए. अब देखो इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, 8000 रुपए हमें कंफर्म मिलने वाले हैं. कंफर्म, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर होता है और वो मिलेंगे, इस पे कोई डाउट नहीं. तो अब इसमें से दूसरी एक और बात कंफर्म है. वो क्या पता है, 2000 रुपीस कंफर्म नहीं मिलेंगे. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेडेड बोलेंगे. यस, एट द सेम टाइम दूसरी बात भी कंफर्म है, 80% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट 20% पक्का नहीं मिलेंगे. तो 2000 रुपए बेडेड हो जाएगा, वो भी एडजस्टमेंट का. नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई. मैं यहाँ पे करूंगा बेडेड ऑफ एडजस्टमेंट 2000 रुपीस. कितना बाकी बचेगा, 92000. इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग यहाँ पे दे देंगे, बेडेड ऑफ एडजस्टमेंट 2000. अब इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने मुझे 5% बेडेड रिजर्व बोला है. अगर मैं 5% बेडेड रिजर्व इस पे एप्लीकेबल करता हूं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा. आपको लगेगा लेकिन सर अभी तक हमने जितने एग्जांपल किए जहां पे बेडेड रिजर्व आया था, हमने हमेशा ये रिजल्टेंट फिगर पे 5% या 10% जो भी परसेंटेज दिए थे वो अप्लाई किया था. लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा.
I have to apply this 5% on the remaining debtors. अगर मैंने 5% 84,000 का किया कितना आएगा? Will be 4200 and that is the correct amount of BDR. क्वेश्चन में आ रहा है कि सर ये 84,000 पे क्यों किया? हम तो हमेशा यहाँ पे रिजल्टेंट फिगर पे करते थे. देखो बैड डेट रिजर्व का अगर आपको याद हो तो इसका मीनिंग क्या रहता है? बैड डेट रिजर्व का मीनिंग क्या रहता है? बैड डेट रिजर्व यानी सामने वाले ने अभी तक कुछ नहीं बताया लेकिन ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि 5% लोग पैसा नहीं देंगे. इसके लिए मैं अभी से क्या करता हूँ? प्रोविजन क्रिएट करता हूँ. फिर से एक बार, डेटर्स की साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अगर उन्होंने कंफर्मेशन दिया तो वो बैड डेट बन जाएगा. डेटर्स की साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये मेरे पास एक्सपीरियंस पे से मुझे लग रहा है कि 5% डेटर्स पैसे नहीं देंगे. दैट्स व्हाई आई वांट टू क्रिएट रिजर्व फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. तो यहाँ पे हम लोग हर बार क्या करते थे? 92 पे क्रिएट कर लेते थे लेकिन यहाँ पे लेट मी टेल यू, आउट ऑफ 92,000 कैन आई से 8,000 रुपए के डेटर ऐसे हैं जिनके पैसे कंफर्म है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. कोर्ट के ऑर्डर से कंफर्म है. तो डाउट जो है, आप ये रिजर्व क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि आपको डाउट है. जो डाउट है वो डाउट इस इन पैसों पे तो होना ही नहीं चाहिए. जो भी डाउट होगा वो सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पे होगा एंड दैट इज व्हाई डाउटफुल डेट रिजर्व शुड बी क्रिएटेड ऑन ओनली ऑन द रिमेनिंग अमाउंट. दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द एग्जांपल. So 4,200 will be kept as bad debt reserve in the format. Next one. Calculate 20% depreciation on machinery. Let's find out friends. Machinery in total 2 lakhs rupees दिया हुआ है. उस पे 20% depreciation लगाना है. It's very simple. 40,000. कितना बचेगा? 160. To depreciation on machinery. 40,000. What is next? Patents to be revalued 17,000. Patents अंदर दिया है 20,000. अब इसका रिवैल्यूएशन करना है 17,000 रुपए से. तो कहना इसे पेटेंट्स को राइट ऑफ किया आपने 3,000 रुपीस. तो यहाँ पे क्या आएगा? टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ इट इज 3,000. इट्स अ लॉस. Office salary 1,500 is outstanding, which is included in office expense. Now friends, please check. Office expense है 20,000 और उसमें outstanding salary कितनी है? 1,500 रुपए. So 21,500 हो जाएगा एंड यहाँ पे liability side पे outstanding salary 1,500. Now friends, after finishing all the adjustments, I would like to start with ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. उसमें से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उन्होंने, इट इज 30,000 रुपीस. देन वी हैव परचेज इज 1 लाख. लेट्स हैव दिस फाइनल फिगर. यू मे वेरीफाई, मस्ट बी 93,000. देन वी आर प्रोवाइडेड विद सेल्स 2,50,000 में से 6,000 जाएगा तो 244,000. ऑलराइट, डेटर्स हो गया, creditors already done, machinery done, 10% loan taken. Now friends, please check. 10% loan taken कितने का है? 50,000. Now date is given 1/10/2014. तो friends 1/10/2014 का मतलब क्या हुआ? ये लोन आपने 6 महीने के लिए लिया है तो 50,000 का 10%. देखो ओरली भी कैलकुलेट हो सकता है, वर्किंग नोट भी डेफिनेटली बना सकते हैं, ओरली भी हो सकता है. 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000. 1/10/2014 यानी 6 मंथ्स के लिए मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 5,000 का, 5,000 तो पूरे साल का है, 6 मंथ्स यानी उसका आधा 25. तो 2,500 should become my interest expense which is outstanding interest. एंड उसका दूसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पे outstanding interest 2,500. Outer column it will be 52,500. Insurance premium done, I guess. Advertisement expense is also done. Furniture they have given 8,000 rupees, which is lakh. Asset में simply लिख देना है 8,000 rupees. Bad debt reserve of trial balance is 6,000. All right. They have given rent paid 1,200 per month. Now this is interesting. 12,000 total दिया हुआ है. They said 1,200 per month.
अगर 1200 रुपये हर महीने के हिसाब से रेंट है तो आपका टोटल रेंट होना चाहिए 14,400. How it is coming? 1,200 rupees per month multiplied by 12 कर दो आप लोग. So it will come to 14,400. So outstanding कितना आएगा? 2,400 and outstanding rent is 2,400. These are hidden adjustments. Carriage inward is provided 4,000 rupees. Let me write down carriage to carriage inward. It is 4,000 rupees. Cash balance is 30,000. Then we have office expenses already done. Rent received. Rent received should be on the credit side of P&L account. It is 3,000 rupees. Patents done. Discount received. Once again, it should be on the credit side. 2,000. Depreciation on furniture trial balance में दिया है, so सिर्फ एक इफेक्ट देंगे. Depre on furniture. It is 2,000 rupees. Capital दिया है 1,68,000. I would like to keep it over here. And then they have given reserve. Reserve capital के नीचे separately दिखाएंगे 42,000. All the items of trial balance is also over. Now we can make this total. 321,400. If we deduct 1944,400 to GP by GP 194,400. ये हो जाएगा 199,400. Let's keep everything in our form. ये डिडक्ट करेंगे 200 रुपए आएंगे. I'll keep 199,400 over here. You can make totals. आराम से करो. 96,550. अगर ये नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 96,550. नो ड्राइंग्स. चलिए 258,550 एकदम आराम से. 380,950. You may verify on the asset side. Same total should come. Please verify. Is it 380,950? All right. Please write it down.